starting with the first term, insoluble. What is the meaning of insoluble? So insoluble substance is a substance that does not dissolve in solvent. Now, solvent, do you remember? तो जैसे if I take the example of water, ठीक है, water and sugar. So water is considered to be solvent. ठीक है, water is solvent. जिसमें चीज घुलती है, that is known as solvent. And sugar will be considered, I am telling you a new word, solute. So because this is science class, so you should know these terms. So वही पूछ रहे हैं कि इनसे जो इसमें बता रहे हैं, insoluble substance is a substance that does not dissolve in solvent. ठीक है, so sugar is a, अगर आइए तो ये sugar तो जो जा रहा है ये क्या है, this is soluble. लेकिन इसकी जगह अगर हम एग्जाम्पल ले लें wood, so this wood will be considered to be solute, but this solute doesn't dissolve in solvent, then wood will be considered to be insoluble material, या substance. So in this, one more example is there about chalk. The chalk is considered to be an insoluble substance because chalk is not soluble in the solvent, that is water. The other word is luster. Luster, कभी अगर आपको confusion हो रहा है, just remember this word, चमक. Means luster is the way light interacts with the surface of a crystal, rock or a mineral. तो luster means कि when क्या होता है कि when light falls on any mineral, when light falls or on any object, इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं on any object. तो when light falls on it, तो उसका एक रिफ्लेक्शन होता है, उसमें उस रिफ्लेक्शन से एक चमक आती है, एक लस्टर आता है. तो लस्टर इज द वे लाइट इंटरेक्ट्स विद द सरफेस ऑफ अ क्रिस्टल रॉक और मिनरल, एंड लस्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मीन्स जिनमें लस्टर है, वी विल पुट इन द कैटेगरी ऑफ मेटल्स. अब यही वर्ड हम वी आर गोइंग टू रीड इन अ डिटेल. मेटल्स, व्हाट आर मेटल्स? तो मेटल्स क्या, दे आर ओपेक. नाउ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस सेशन वी हैव लर्न ओपेक मीन्स वी कैन नॉट लुक थ्रू इट. तो मेटल्स आर ओपेक. लस्टरस जो अभी आपने करा, एलिमेंट्स दैट आर good conductor of heat and electricity. That's why if you remember, हमने जब chapter start करा था, I have shown you some utensils कि we cook in those particular utensils because they are good conductor of heat. And electricity में जो wires use होते हैं, they are also made up of metals. Most metal are malleable and ductile. So see how these properties are interlinked with each other. क्योंकि अब हमने मेटल का कहा कि वायर्स की बात करी थी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो वायर कैसे बन रहे हैं? बिकॉज मेटल्स हैव वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स दे कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स. मैलिएबल मीन्स दे कैन बी चेंज इनटू शीट्स and are in general denser than the other elemental substances. They are denser also. So malleable means change into sheets
and ductile means can be changed into wires. So number of properties ke they are opaque, lustrous, good conductor of heat and electricity, malleable, ductile and dense. So all these properties count with the property of metals. Opaque. So do you remember how what are opaque objects? Now if you want to give a particular definition, how will you write it? The material that does not allow light to pass through them. So why things are not visible to us? Because they are not allowing light to pass. जब तक light कहीं नहीं pass होगी, we cannot look for any object. So it does not allow light to pass through them. Thus the other side is not visible. So these are known as opaque, like book, box, wood, etc. तो just remember, तो जैसे अगर transparent का होगा तो you will say because it allows light to pass through it. तो when light can pass through it, then they are transparent. When light cannot pass through it, then they are considered to be opaque objects. Now coming to transparent, the same thing. That allow light to pass through them, thus the other side is visible. तो just देखिए आप definition में हमें ये बहुत ध्यान देना होता है कि अगर if you are writing only this part, तो आपके थोड़े marks कट हो सकते हैं. To get the full marks आपको इसके साथ ये join करना पड़ेगा कि the other side is visible. ऐसी opaque में कि it does not allow light to pass through them, thus the other side is not visible. क्योंकि यू हैव टू मेक द कनेक्शन कि लाइट नहीं पास हो रही है या हो रही है, उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि दैट इफेक्ट काउंट्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल. तो इसलिए कभी अधूरा नहीं, पूरा जो लैंग्वेज लिखी होती है यू शुड लर्न. तो द मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, दस द अदर साइड इज विजिबल, आर नोन एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स भी कह सकते हैं, या ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास. ग्लास अब याद हो गया ना आपको, मीन्स क्या, कांच, वाटर, एयर एक्सेट्रा. कमिंग टू द अदर, soluble. What are soluble materials? Something that can be dissolved. ठीक है, and dissolved means घुल सकते हैं. घुलना. Something that can be dissolved. For example, sugar that dissolves in water. So it becomes a part of it as an example of something that is soluble. तो it becomes a part of it. तो जैसे आप देखिए water में if I put some sugar, but after some time क्या होगा, मुझे बस यही दिखाई देगा, only water. Why? Because sugar is soluble in the water and it becomes a part of the water. Do you get it? तो ये इसलिए, तो these are the terms. देखिए कैसे हम अपना, हमें मालूम है सब कुछ, but how do we put in language? This is very important. कि something that can be dissolved, for example sugar that dissolves into water, so it becomes a part of it, is an example of something that is soluble. So if it is not becoming a part of it, then that thing will be considered to be insoluble. And then if you remember, हम जब when we were talking about materials, we were talking about they have a smooth surface, they have a rough surface. So materials that have an uneven or irregular surface are said to have rough surface. So rough surface, something like this. This is known as rough surface.
लेकिन अगर आपको एक स्मूथ लाइन मिल रही है देन दैट इज अ स्मूथ सरफेस. ठीक है. अनइवन या इरेगुलर मीन्स लाइक यू सी इन दिस. तो इज दिस अ रेगुलर थिंग? ये लाइन ऊपर नीचे जा रही है? नो, दिस इज नॉट अ रेगुलर. रेगुलर के लिए क्या है? इफ आई से दिस पार्ट, कैन यू सी द स्ट्रेट लाइन हियर? दिस इज अ रेगुलर एंड दिस इज अ इरेगुलर. तो सी द डिफरेंस अनइवन और इरेगुलर. अनइवन लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रोड. जब गड्ढे होते हैं आप ऊपर नीचे करके चलते हैं, होता है या नहीं होता है? तो डेट इज अ अनइवन सरफेस. और इरेगुलर में मीन्स व्हेन यू आर वॉकिंग फ्रॉम योर स्कूल या फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो आप एक स्ट्रेट रोड नहीं, आप कभी लेफ्ट कभी राइट कभी यू आर मूविंग जिगजैग, तो देन दैट इज नोन एज इरेगुलर. रेगुलर अगर स्ट्रेट रोड होती है. तो इस वे में तो ये रेगुलर इरेगुलर अनइवन का आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. इसी वे में जो हमारे मटेरियल्स होते हैं दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस. कहीं कहीं आपको बहुत स्मूथ सरफेस मिलता है एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या है जो आप यूज कर रहे हैं वो दे आर मैन्युफैक्चर्ड होता है. तो वो हर चीज को एक स्मूथ वे में करते हैं. बट यू जस्ट थिंक अबाउट सम रॉ थिंग इफ यू आर टेकिंग इट आउट. अगर ऐसे ही कोई आयरन का आप पीस उठा लें देन यू विल कैन फील द अनइवन सरफेस. लेकिन उसी आयरन को जब हम एक कहीं रेलिंग में वी पुट इट एंड उसमें जो उसका एक्सपर्ट होता है वो उसको मॉडिफाई करते हैं देन वी गेट द स्मूथ सरफेस. सो materials that have an uneven or irregular surface are said to have rough surface. तो इसको हम कहते हैं रफ सरफेस. और ये जो रफ सरफेस होता है दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ किसका? नॉन मेटल्स. तो जो हमारे मटेरियल है दे आर ऑफ टू टाइप्स. डेट ये जो है ये आप और सीनियर क्लासेस में व्हेन यू विल मूव टू अदर सीनियर क्लासेस देन यू विल लर्न. लेकिन थोड़ा सा आप आइडिया ले लें. जो मटेरियल्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स का आपने प्रॉपर्टी देख ली थी. दे आर डक्टाइल, दे आर मैलिएबल, दे आर गुड कंडक्टर. एंड नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं. और इसके मीन आपके जब गैसेस और ये सब आ जाते हैं दे कम इन दिस कैटेगरी. बट दिस यू विल लर्न इन क्लास 7. अभी के लिए आपको बस एक इंट्रोडक्टरी पता चला है कि मेटल्स क्या है एंड सम प्रॉपर्टीज जो हमने देखी लाइक ट्रांसपेरेंट एंड नंबर ऑफ अदर प्रॉपर्टीज. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न सम कीवर्ड्स ऑफ द चैप्टर. और उससे हमें आज एक और चीज पता चली कि मटेरियल जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स की हमने बहुत सी प्रॉपर्टीज देखी लाइक they are shiny, they have luster, they are good conductor of heat and electricity, they are ductile, they are malleable, number of other things. So ये हमने फोकस कर लिया है. So in this and through this chapter अभी जो हमने keywords learn करे उसके साथ हमने थोड़ा सा what we have learned before उसका थोड़ा सा recap भी करा. and better person आप ही हैं, better judge कि इफ यू कैन जज आपको पहले का कितना याद था. तो द नेक्स्ट सेशन विल बी द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर जिसमें वी विल टेक द समरी ऑफ द चैप्टर. और जैसा आपको मालूम है एवरी टाइम व्हेन आई टेक द समरी वी डिस्कस कि यही सेम चीज पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सो दैट यू कैन गिव द आंसर. दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. बाय.